ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 51 ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हैं फिर ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੀਟ। ठीक है ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਬੱਲਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਬੰਦ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ। ਪੱਖੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਊੜਾ ਸੌਂਦਾ, ਆੜਾ ਖੇਡਦਾ, ਈੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਸੱਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਗ ਆੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ, ਆੜਾ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਈੜੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ, ਸੱਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ। ਬੱਚਿਓ ਭਾਗ ਈੜੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਊੜਾ ਅਣਸੁਣੀ, ਆੜਾ ਅਣਸੁਣੀ, ਈੜੀ ਅਣਸੁਣੀ, ਸੱਸਾ ਅਣੁਸੁਣੀ। ਬੱਚਿਓ ਭਾਗ ਊੜਾ ਅਣਸੁਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਊੜਾ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਆੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ, ਈੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਸੱਸਾ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਗ ਆੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਕ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਸੀ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੱਚਿਓ ਪੱਖਾ ਬੰਦ, ਪੱਖਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਦਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਊੜਾ ਹੈ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆੜਾ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਪੱਖੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਈੜੀ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਬੰਦੇ ਪੱਖੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਈੜੀ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪੈਰਾ। ਰੀਨਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਕਲਾਸ 5. Her father is a shopkeeper and mother is a homemaker. She has a little brother. Her grandparents live with them too. Reena wakes up at 6 in the morning. After brushing, bathing and getting ready for school, she worships God along with her family. Even in her school, she behaves very well. Everyone likes her as she never fights, speaks politely, obey teachers and respect her elders. बच्चों आगे हल कर दिया क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, एट व्हाट टाइम डज रीना वेक अप? यानी रीना सवेरे कितने बजे उठती सी? ए एट 6 in the morning, बी 6 in the evening, सी in the afternoon, डी एट नाइट। बच्चों हमेशा इंसान सवेरे जल्दी उठता है, परंतु ਅਸੀਂ ਰੀਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਐਟ 6 in the morning। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, what does she do after getting ready for school? ਨਨ ਬੱਚਿਓ, A takes her breakfast, B leaves for school, C worships God, D fights with others। ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ C worships God। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, choose the incorrect statement। जो वाक सही नहीं है। फर्स्ट है ए, रीना नेवर फाइट्स विद अदर्स। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। रीना रिस्पेक्ट्स हर एल्डर्स, ये भी सही है। रीना ऑलवेज हेल्प अदर्स, ये भी सही है। रीना स्टडीज़ एट क्लास 5 जो पैरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਨਾ ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, क्योंकि बाकी सारे आंसर बच्चों ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ठीक है, सो ऑप्शन सी ਇਹਦਾ आंसर है, यानी रीना ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। अगे है बच्चों, रीना हैज़ डैश लिटिल ब्रदर। A N B A,
सी द, डी हर। बच्चों प्रपोजिशन है, सो इत्थे की भरिया जाएगा? ए, रीना हैज़ ए लिटल ब्रदर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, मतलब जो जोड़ा सही नहीं है उस पे ऐसे निशान लगाना है। ए बॉय गर्ल बिल्कुल सही है, ब्रदर सिस्टर बिल्कुल सही है, फादर मदर बिल्कुल सिस्टर है, डी ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों ग्रैंड और पेरेंट्स दोनों डिफरेंट चीज़ा हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो जेंडर चेंज द जेंडर हैं। सो डी ऑप्शन बिल्कुल मतलब गलत है, जोड़ा गलत है। सो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी ग्रैंड पेरेंट्स। हुण अगे बच्चों हल करते हैं असीं गणित का पेपर। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो की है, रमन का रोल नंबर 65 है, किहड़ा गिनतारा रमन का रोल नंबर दर्शा रहा है? बच्चों गिनतारे दे विच असीं दहाई और इकाई के अंक के स्थान नूं लिखना है, तां ही सानूं पता चलेगा कि किहड़ा गिनतारा उसके अंक नूं रोल नंबर नूं दर्शा रहा है। बच्चों पहला गिनतारे दे विच की है, देखो दहाई के स्थान उपर 5 अंक हैं और इकाई के स्थान उपर 9 अंक हैं, ठीक है। सो ये है गलत। आड़ा है बच्चों, आड़े दे विच दहाई के स्थान उपर 6 अंक हैं और इकाई के स्थान उपर 5। सो बच्चों ये तो बिल्कुल सही हो गया अपना। सो आई थिंक अपन नूं होर ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। सो साडा सही आंसर आएगा भाग आड़ा, यानी 6 और 5 65, ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों अगला सवाल, कमल, हरलीन, रवि और हरजोत ने 6 अंक 6 और 9 की वरतों करते हुए 2 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या लिखी, किसने सही संख्या लिखी? बच्चों इस सवाल तो आप पहला भी कर चुके हाँ। बच्चों जो भी वड्डी तो वड्डी संख्या या छोटी तो छोटी संख्या लिखनी होंगी है तो सब तो पहला अगर छोटी संख्या है तो छोटा अंक पहला लिखना है, अगर वड्डी संख्या है तो वड्डा अंक पहला। हुण बच्चों असीं इत्थे छोटी संख्या लिखनी है तो 6 और 9 दे विचों जिहड़ा अंक छोटा है भाव 6 असीं उसनूं पहला लिखांगे और वड्डे अंक नूं बाद दे विच, ठीक है। सो बच्चों हुण देखते हैं संख्या की बनती है। बच्चों 6 पहला लिखा और 9 बाद दे विच, तो संख्या बन गई 60 9 69। हुण बच्चों ऑप्शनस देखते हैं किसने लिखी है ये संख्या। हाँ जी बच्चों, भाग उड़ा कमल ने 60 9 69 बिल्कुल सही है बच्चों। आड़ा हरलीन ने 60, ईड़ी रवि ने 90, सस्ता हरजोत ने 6। बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन है ऊड़ा, ठीक है। भाव कमल ने संख्या सही लिखी है। हुण अगे प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3। हाँ जी बच्चों देखो की लिखा है, ये बनया हुआ एक तरबूज, तरबूज का भार हेठां दित्तियां विचों किस वस्तु नाल तोलिया जा सकता है? बच्चों भार असीं किहदे नाल तोलदे हुंदे आ? तराजू दे नाल। हत्थ नाल असीं भार तां नहीं तोल सकते, सो ऑप्शन उड़ा गलत है। इंची टेप नाल भी किसी चीज़ का भार नहीं तोलिया जा सकता, उस दे नाल तां लंबाइयां दी चौड़ाइयां दी मिणती हुंदी है, सो भाग आड़ा भी गलत है। ईड़ी है बच्चों मग, बच्चों मग दे विच असीं पानी वगैरह पा सकते हैं परंतु इस नाल भार तां नहीं तोल सकते, सो ये भी गलत है। अगे है बच्चों भाग सस्ता तराजू, सो अपना सही उत्तर है भाग सस्ता, जिस दे विच असीं तरबूज रख के उसनूं तोल सकते हाँ, ठीक है, या उसका भार तोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। भाग सस्ता सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, हेठां दित्ते चित्र विच किन्नियां वक्र रेखावां हन? बच्चों हुण तुसीं इन्हां चित्र नूं ध्यान नाल देखो तो सानूं किन्नियां वक्र रेखावां दिखाई दे रहीआं हन, ठीक है बच्चों। इस दे विच सब तो पहला असीं वक्र रेखा तो सानूं पता है ना, बिल्कुल सही बच्चों, जिसका कोई जो सीधी नहीं हुंदी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुंदी है, जिस तरह हुण असीं पहलां देख रहे हैं 1 2 3 4। बच्चों किन्नियां वक्र रेखावां ने इस दे विच? 4, ठीक है। हुण असीं ऑप्शन पढ़दे हाँ, भाग उड़ा 4, आड़ा 3, ईड़ी 7, सस्सा 12। सो बच्चों इसका सही उत्तर है भाग उड़ा 4। अगे है बच्चों, समझो अते खाली थां भरो। बच्चों टमाटर बने हुए हैं, इन्हां दे विच बच्चों संख्या लिखी हुई है, तुसीं ध्यान नाल देखो तो संख्या की लिखिया हुई हैं, पहले विच 3 फिर 6 फिर खाली है फिर 12 फिर 15। बच्चों इन्हां नूं देख के कुछ लड़ी याद आ रही है तुहानूं? ये बच्चों 3 का पहाड़ा है, जिवें 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तीए 9। सो तीजे खाने विच की आएगा 9, ठीक है। उड़ा 5, आड़ा 7, ईड़ी 9, सस्सा 11। सो बच्चों भाग ईड़ी 9 बिल्कुल सही है। हुण हल करते हैं बच्चों पेपर हिंदी। जो सब तो पहले असीं पैरा पढ़ते हैं, रहीम अकबर के दरबार के महान कवि थे, महान होते हुए भी वह बहुत उदार थे, वह दूसरों की सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। रहीम महान दानवीर थे, उन्होंने कभी कीर्ति की कामना से दान नहीं किया बल्कि सच्चे मन से दूसरों की सहायता की। दान देते समय उनका एक नियम था कि वह कभी आंख उठाकर नहीं देखते कि दान लेकर कौन जा रहा है। बच्चों क्वेश्चन आंसर करते हैं।
रहीम किसके दरबार के महान कवि थे? बच्चों इसका आंसर है जो वो पहली लाइन दे विच ही है। रहीम अकबर के दरबार के महान कवि थे। सो हुण ऑप्शन पढ़ते हैं। क शाहजहां, ख जहांगीर, ग अकबर, घ सिकंदर। बच्चों की है ऑप्शन ग अकबर बिल्कुल सही है। आगे है बच्चों रहीम महान डैश थे। रहीम क्या थे? महान कवि थे। क दरबारी, ख दानवीर, ग संगीतकार, घ योद्धा। बच्चों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो महान दानवीर सी। सो भाग ख बिल्कुल सही है। आगे है रहीम किसकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते थे? क राजा की, ख प्रजा की, ग दूसरों की, घ अपने माता पिता की। बच्चों इसका सही उत्तर है दूसरों की। ठीक है। आगे है बच्चों गद्यांश में से यश का समानार्थक शब्द चुने। यश हुंदा है बच्चों कीर्ति, मान सम्मान। ठीक है। हुण ऑप्शन देखते हैं। कीर्ति, ख उदार, ग दान, घ महान। इसका सही उत्तर है बच्चों क कीर्ति। ये है बच्चों दान देते समय रहीम जी किस नियम का पालन करते थे? क दोनों हाथ जोड़कर दान देते थे, ख आंख उठाकर नहीं देखते थे, ग प्यार से देखा करते थे, घ आशीर्वाद दिया करते थे। बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख आंख उठाकर नहीं देखते थे। जो हुण हल करते हैं वातावरण का पेपर। समय समय ते सब्जियां नूं कीटां तो बचाउण लई कीटनाशक दवाइयां दा छिड़काव किया जाता है। कीटनाशक दवाइयां दा सब्जियां उत्ते पैण वाला माड़ा प्रभाव की है? हाँ जी बच्चों इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। एक स्वाद खत्म हो जाता है, नंबर 2 सब्जियां जहरीलियां हो जांदियां, नंबर 3 सब्जियां बहुत लेट होंदियां हैं, सब्जियां गल सड़ जांदियां हैं। बच्चों इसका सही उत्तर है सब्जियां जहरीलियां हो जांदियां जदों कीटनाशकां नाल असीं कीटां नूं मारदे हां। तां फिर देखो एक जहर ही हुंदा है, जो जहर किसी चीज़ के उत्ते पएगा तो उसका भी नुकसान होएगा, वो भी मरेगी, वो भी खत्म होएगी। ठीक है। वो भी जहरीली होएगी। सो इसका सही उत्तर है भाग 2 सब्जियां जहरीलियां हो जांदियां हैं। ठीक है। अगला है बच्चों विटामिन। देखो खब्बे हाथ विटामिन है, विचकार लिखा होया कमी होने वाले रोग, सज्जे हाथ लिखा स्रोत। बच्चों लिखा विटामिन डी दे कमी कारण रिकेटस हुंदा है ते स्रोत की है सूरज की रोशनी। ए अंधराता, गाजर, पपीता, पालक। सी स्कर्वी, खट्टे फल आंवला। ई चमड़ी की बीमारी ते पुंगरियां दाना। हुण बच्चों प्रश्न पढ़ते हैं कि उपरोक्त सूची नूं गंभीरता नाल वाचदे होए दसो कि जिस व्यक्ति दी नाप शाम नूं हनेरा होण दे नाल अखां दी नज़र खत्म हो जाए उसनूं वध मात्रा विच की खाना चाहिए है? नंबर 1 खट्टे फल गाजर, नंबर 2 पपीता, नंबर 3 सूरज की रोशनी, नंबर 4 पुंगरियां दालां। बच्चों जिसनूं शाम समय अंधेरे वेले घट नज़र आता है उन्होंने अंधराता का रोग होंदा है। सो उसनूं पपीता वध मात्रा दे विच खाना चाहिए है। सो इसका सही उत्तर है भाग 2। अगला प्रश्न है बच्चों रंग बिरंगे पंछी आसमान विच उड़दे सोहणे लगदे हैं ते पंछियां दे सोहणे दिखण दा की कारण है? दरख्तां ते रहण कारण पंछी सोहणे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो उन्हां दा घर हुंदा है। खंभां नाल पंछी सोहणे दिसदे हैं? बिल्कुल सही। पंजियां कारण पंछी सोहणे दिसदे हैं? बिल्कुल सही। मिट्ठी बोली कारण पंछी सोहणे दिसदे हैं। बच्चों असीं की दस्सिआ सी कि उन्हां दे दिख दा की कारण है? बच्चों दिख दा कारण हुंदा है पंछियां दे खंभ जो सानू सोहणे लगदे है ते असीं कह दिंदे आ खंभ किन्ने सोहणे ने पंछी दे। सो इसदा सही उत्तर है भाग 2। अगला प्रश्न है बच्चों मूँह विच कीटाणु ना पैदा होण इसलिए भोजन खाण तो बाद की करना चाहिए है? कसरत करो, दंद साफ करो, टीवी देखो या गर्म पानी नाल नहाओ। बच्चों कसरत करना शरीर तंदुरुस्त रहता है, टीवी देखण नाल असीं मनोरंजन लई देखते हाँ, गर्म पानी नाल नहाना हुंदा है। सो बच्चों दंदां दी सफाई लई भोजन खाण तो बाद दंद साफ करने चाहिए हैं। भाग 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि विच कागज़ विच सूई खुबो के हर अखर लई की बनाया जाता है? नंबर 1 तस्वीरां, नंबर 2 बिंदियां, नंबर 3 आकृतियां, नंबर 4 स्लेटां। बच्चों उसदे लई नंबर 2 बिंदियां बनाई जांदियां हैं, बिंदियां तो ही आकृतियां बनदियां हैं। ठीक है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है भाग 2। हाँ जी बच्चों आस करदी हाँ तुसीं अज दी पैस की शीट नंबर 51 नूं चंगे तरीके समझ लिया है। हुण तुसीं इन्हां नूं अपनी कॉपियां दे उपर भी नोट करना और इन्हूं याद करना। पैस की तैयारी करते रहो, पैस दे विच सफल होना है, 100% रिजल्ट लैणे हन। ऑल द बेस्ट सारिआं नूं।